टू राइट दी ऐसे ऐसे कैसे इसे लिखा जाएगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस ऐसे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऐसे? First of all, you have to know essay is just like composition, and इसे हिंदी में रचना भी कहना गलत नहीं होगा। और ये कितने शब्दों में होगा? वर्ड्स। अब देखिए, जैसे कोई टॉपिक का ऐसे आता है तो उस टॉपिक पर जेन्युइन चीज आपको लिखनी है, तो लिखिए टॉपिक पर जेन्युइन चीज लिखना है। क्या चीज? जेन्युइन। जो टॉपिक की डिमांड हो, जो टॉपिक जिससे रिलेटेड हो, लिख लीजिए रिलेटेड। व्हाट इट वांट्स, इट्स कंटेंट, what it wants, related, genuine, and last is title. Last is title. टाइटल लास्ट में। हाँ, बोले क्या? उससे ले लो। क्या चाहता है वो? कोई एक लिखना पड़ेगा आपको, 5 में कोई एक। हम 5 दे रहे हैं ना। एक और ले लीजिए। डीपीएसपी माने होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इतना जान लीजिएगा, इन 5-6 ऐसे में आपको मिल जाएगा। ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण
जाल में फंसेगा। एक, I am not writing human rights on board. I have lectured, I delivered lecture on human rights. The topic which is today I have written on the board. You have to listen formally and understand it. Human right. What is human right? First of all, when you are writing the essay, you have to concentrate yourself on the topic, which is topic is demanding. What it demands? What is human right? When it comes, human right is a right. Human right is such a right which is given to all human beings, which is on the earth. पहला सेंटेंस हो गया, which is on the earth. जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है उसे सभी व्यक्तियों को मानवाधिकार का अधिकार प्राप्त है. ह्यूमन राइट मीन्स ए सच ए राइट which is living right. हाँ, जीवित अधिकार है या जीवित लोगों पर पूर्ण रूप से लागू होता है. इट इज राइट which is essential for all human, not over India but all over the world. Every human, what kind of human? Such a human which is constitutionally, the constitution has given the supreme powers and authority to the humans like liberty, thought, expression, belief, faith and worship. Liberty, thought, worship, belief and worship. जैसे किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान भी इन चीज़ों की छूट देता है, जैसे पूजा की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की, चुनाव की, मतदान की, ये सब की छूट देता है. तो ह्यूमन राइट उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा. अगर किसी की ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज होती है, इन्फ्रिंज मीन्स बाधित, व्हेन वंस ए ह्यूमन राइट इज infringed, not infringes, infringed, then that person is right to go on the court. That person it is his personal right to go on the court. In which court? Human right court. Where is human right court? There are 3 sections and 4 parallel sections where the human right cases, or you can say the human right data have been assembled. The human right data has been assembled on international level, national level, state level and district level. Understand? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में, ह्यूमन राइट में आप देखेंगे कि जो इसका पूरी भूगोल है, इसका रचना है, इसका नियंत्रण है, कहाँ से हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से. कहाँ से हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आपको नियंत्रित करता है. इट सेफगार्ड्स योर राइट्स. आपके अधिकारों को सेफगार्ड करता है, उसको सुरक्षित करता है. आपके अधिकार कभी भी मिसकैरेज नहीं होने चाहिए, कभी भी मिसकैरेज नहीं होने चाहिए, बाधित नहीं होने चाहिए. आपका अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे. आपको यू हैव टू फ्री टू वर्शिप एनी गॉड, you have to free to travel anywhere abroad India, you have to free to allocate yourself according to your mandate, you have to free to movement all over world and abroad. All these things are the rights of the human rights. And the second position is that it is the most basic. There are 3 and 4 things which have been enshrined in our constitution, or you can say the human rights have been given the powers. इसको कई नामों से जाना जाता है. There are different names. Basic right, human right, basic right, human right, birth right. There are 3 and 4 names of that right, not a human right, but these names are also enacted with this: basic right, birth right, human right, fundamental right. ये आपके सब अधिकारों में जन्मजात अधिकार माना जाता है. इसे बेसिक राइट, जन्मजात अधिकार, बर्थ राइट, बेसिक राइट, इन सब अधिकारों के नाम से इसे जाना जाता है. अब देखिए, व्हेन द इंडिया वाज फ्री 1947, एट दैट टाइम द सिचुएशन इज दैट द ह्यूमन राइट वाज नॉट सो इन ए पोजिशन टू
reconciliate himself to cover the people, to cover the human's dignity. At that time, the human's dignity is too much not so substantive according to the law. But Constitution has given this safeguard. Our Constitution has given from that beginning. But the human right is not safeguard. But after time is passed, then after the situation is arises, human right is regularly regulates its powers through their mechanism, and that mechanism should be provides all human spheres in good faith, in good relation, in good welfare state. कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कुछ पूरा थोड़ा? चलिए तब तो ठीक है आपको। अब देखिए फ्रॉम द 1800 से फ्रॉम द 18th human right is such a right when the human civilization is started. Civilization is started. It is not on such a right that Indian Constitution is drafted on 15th August 1947 and came into force on 26th November 1946 in such a that is not matter. Human right is started when the human civilization is started. From that beginning, and from that beginning, the rights and the powers and the establishment of human empowerment, or you can say the carefulness of child. One death is equal to punishment of that person till death. One death of a person of punishment is to till death. अगर कोई व्यक्ति किसी की एक बार हत्या करता है किसी जघन्य अपराध में तो उसकी मृत्युदंड होगा। अब देखिए क्या होता था, पहले जो थे बहुत देश आज़ाद हुए, भारत भी उसी में था, ह्यूमन राइट को लोग निगलेक्ट करते थे, इसको ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन ऐसी घटना होती है कि अगर पुलिस निगलेक्ट कर देती है, अगर प्रशासन निगलेक्ट कर देता है, अगर डीएम निगलेक्ट कर देता है तो डीएम बच नहीं पाएगा। डीएम को बचना नहीं है। ह्यूमन राइट की अलग टीम है, उनसे सवाल करेगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार उनसे सवाल पूछेगा, मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामला हमारे किससे पूछेगा? एम्बेसी से पूछेगा। एम्बेसी से सवाल पूछेगा कि इसका मामला है आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में, गांव सोनगांव, महिला को जला के मार दिया गया, कारण बताओ। तो इनको रिपोर्ट फिर चली जाएगी अकबरपुर डीएम के पास, एसपी के पास। इनको रिपोर्ट को सर्च करना पड़ेगा, पूरी घटना का जवाब देना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? दैट इज द ह्यूमन राइट। आर यू अंडरस्टैंड इट? अब लगभग 100 वर्ड तो मैं बोल ही दिया हूँ, बोल दिया ना। कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर बता देते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई चीज़ जब आप पढ़िए तो उसको पहले समझिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन राइट, फर्स्ट थिंक देन राइट, फर्स्ट फील देन राइट। कोई चीज़ समझे बगैर न बोला जाता है न लिखा जाता है। सही है ना? और सही ये भी है, वीडियो 30 मिनट चलेगा बेटा, ये भी आप जान लीजिएगा कि लाइफ कभी भी आपको मौका नहीं देगी। लाइफ हैज नो चांस। चांस लाइफ में मिलने वाला नहीं है। ठीक, लाइफ में कोई चांस रिटेक का नहीं है। ये बताइए, कोई बच्चा जब पैदा हो जाता है तो क्या फिर पैदा होता है? इट इज लीगल क्वेश्चन और इलीगल? या क्या सही क्वेश्चन है कि गलत? सही है ना? क्या आपकी उम्र आज हो गई है 16 साल, फिर 16 साल की होंगी? नहीं होंगी ना? तो रिटेक हो रहा है? कभी नहीं होगा। नेवर नेवर नेवर। और एक शब्द है, आप जान लीजिए, इस शब्द से अपनी लाइफ को सजाइए, पढ़िए। रीड मोर एंड मोर देन बिकम सक्सेस। और सक्सेस इज द रीडिंग इज द पावर
राइटिंग इज द सक्सेस, थिंकिंग इज द कॉन्करनेस। जीतेंगे आप। अब देखिए, राइट, गो, फोर्थ एंड कॉन्कर। इसका मीनिंग बताइए। राइट, गो, फोर्थ एंड कॉन्कर। राइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर जीतेंगे। किसको जीतेंगे? अपने सपनों को जीतेंगे। नया भारत, भारत का नया भारत, पुराना भारत नहीं जीतेंगे। जिस भारत में हमारा सपना पूरा होगा। क्या पूरा होगा? महिला सशक्तिकरण। क्या होगा? महिलाएं आईएएस होंगी, मिनिस्टर होंगी, और क्या होंगी? राष्ट्रपति होंगी, स्पीकर तो हो ही गई हैं, राज्यपाल हो ही गई हैं। आपके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? बताइए। हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? गुड। आई थिंक दैट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। A class of 3 students, I think that no, you don't know the governor of the state. How can you survive? How can you survive? What is the full name of the Chief Minister of Uttar Pradesh? What is the full name of Chief Minister of Uttar Pradesh? बताइए, बताओ, आप बताओ, बोलो, हम सही कर देंगे उसको। बोलो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरा नाम क्या है? बोलिए, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हम आपके ये मत डरो कि कोई हंसेगा, कोई कुछ करेगा। बोलो, टेल मी, बोलो। उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। बोलिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, टेल मी, नाम बोलिए, बोलो। बैठिए, आप बताइए, जल्दी बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, हमको आगे बढ़ना है। आगे क्वेश्चन है अभी 2-4 हैं। बोलिए, बोलिए, टेल मी, why you are not telling? What is the reason? He is the second person of this state, you know. 30 लाख की आबादी में दूसरा आदमी है वो। गवर्नर इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ। बताइए नाम, जल्दी बताइए, आगे बढ़े हम। Why you are not telling? नाम नहीं पता है? बोलो, आप बोलो, इनको बोलें, कुछ भी नाम बोलिए उनका जो आता हो। बोलिए। अरे योगी जी नहीं आता है? हैं? योगी आदित्यनाथ नहीं आता है? क्या नाम है उनका? हैं? हैं? आपका क्या नाम है? हैं? खड़ी हो जाइए। व्हाट इज योर नेम? फुल नेम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो आप इतना देर क्यों कर रही थी? वाई यू नॉट टेलिंग? वाई यू टू लेट? सिट डाउन। हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश? बताइए। चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन है? कल पता करके आइएगा, परसों। ये सब चीज़ आप जानो, लॉ के स्टूडेंट्स हो।
नेक्स्ट वी स्टार्ट। अब देखिए ह्यूमन राइट्स, देयर आर बैरियर्स, देयर आर सम बैरियर्स अपॉन द ह्यूमन राइट्स। देयर आर द नॉर्म्स एंड जस्टिस। Where there is working the norm, there will be justice works behind this. The norms will fulfill the justice effort, and the justice effort will be fulfilled by the justice. They are the both coins, norms and justice. Where there is justice, there is norm. Where there is norm, there is justice. अब देखिए ह्यूमन राइट्स इज नाउ ए मोस्ट significant, or you can say power, or you can say the basic right of human right, by which the human can himself put in such a position, or you can say to get such a right by which he can survive himself or herself on any special sphere. किसी भी क्षेत्र में मानवाधिकार, मानव इस मानवाधिकार के द्वारा अपने को प्रगति के क्षेत्र में ले जा सकता है। अगर प्रगति उसकी जिस दिशा में है उस दिशा में ये काम करेगा, कोई भी ऐसा बैरियर आपके जीवन में बाधक नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? बैरियर बाधक नहीं बनेगा। अगर बैरियर बाधक बनेगा तो ह्यूमन राइट उसको निवारण के लिए काम करेगा। आपको सेकंड सेमेस्टर में हम ह्यूमन राइट पढ़ाएंगे। इंटरनेशनल लॉ हमने पढ़ाया पूरा, आप लोग तो गायब थे। सेकंड सेमेस्टर में केवल ह्यूमन राइट पे एग्जाम होने वाले हैं, तो वो हम फुल बताएंगे, तब उसकी बड़ी हिस्ट्री है। मैं अभी शॉर्ट वे में बता रहा हूँ ये कैसे है, बहुत कुछ उसमें बताया नहीं जा सकता। अब देखिए देयर आर सम स्टेप्स ऑफ ह्यूमन राइट, द स्टेप्स विच आर endorsed in our book by the written by book T.P. Tripathi, or you can say there are so many writers. You can buy that book and teach. But at the present time, the English, in English, general English, when you buy your series, or you can say the book, general English book, in that book this ह्यूमन राइट टॉपिक इज देयर, आई थिंक दैट है ना। तो उसको पढ़ लीजिएगा और उसको पूरा पढ़ के उसको तैयार करके आइएगा। अब जानिए आज जो ह्यूमन राइट में बताए हूँ, देखिए 7 तारीख से हम लोग का क्लास शुरू हो जाएगा, अन्य सेमेस्टरों का न्यू सेशन शुरू हो जाएगा 7 से। कल बुधवार है, छुट्टी है, परसों से। तो देन आफ्टर द टीचर्स आर इंगेज देयर, and if you have any problem, or you can ask me, or you can say if you tell me any problem in English or international law, then I have give my time, and you have to especially come to my office without any hesitation, whatever your problem. But I have no time to take class. I am especially taking other subjects of second session, and that session should be very important because the exams were on February last and March 1st. Due to that, today is the last day. All of you, thanks. Okay. See what?